how you started your journey in the fitness industry. Before 25 years, fitness industry was not so organized. So I first started searching for certification. वो कौन सी एक चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया to choose this unconventional career path? One word answer, passion. Passion for fitness, passion for exercise. फेक सर्टिफिकेशंस, जैसे फेक सप्लीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे फेक स्टेरॉइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें वैसे सर्टिफिकेशंस में भी स्कैम हुए जा रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में. तो इस पे आपके क्या व्यूज है? अगर एक स्टूडेंट है जिसको फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर डेवलप करना है और अगर वो एक फिटनेस एकेडमी के बारे में जानकारी लेता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने कुछ चीजों के बारे में इंक्वायरी करना. अब सर 70% पीटी रेशियो जिम्स को जाता है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आइडियल पीटी रेशियो फॉर ट्रेनर्स एंड हाउ कैन वी चेंज दिस करंट सिस्टम व्हिच इज गोइंग ऑन? Since I have also done gym management, I have handled gyms. Okay, my belief is that initially the beginning में ही जो रेशियो होना चाहिए, it should be 50-50%. कुछ साल पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में पूछा था, हु इज अ गुड टीचर? डॉक्टर कलाम पॉज फॉर अ व्हाइल एंड रिप्लाइड, अ गुड टीचर इज समवन हु रेडिएट्स नॉलेज एंड हु रेडिएट्स प्योरिटी ऑफ लाइफ. द सेम क्वेश्चन was once asked to Swami Vivekananda और उन्होंने कहा, a true teacher is someone who comes down to the level of the student, understands his soul, see through the student's eyes, listen through his ears and understand through his mind. Great personalities who the world praise and remember are made great by their teachers. वो टीचर्स जिन्होंने उनको एजुकेट किया, उनकी गलतियां समझी और उनके साथ खड़े रहे, उन पे विश्वास किया. So today at our interview series of Redefined Fitness, we are gonna interview one such teacher जिन्होंने fitness industry के सारे roles explore किए, right from a personal trainer to a gym manager to a teacher faculty to an entrepreneur. And at present, he is the founder, the owner, the principal of India's top grossing institutes, Integrated Fitness and Sports Institute (IFSI), an institute which treats every student's individual goals as if it is their own, which steps in the students' shoes and collaborates to unlock their full potential, builds a strong community of qualified fitness professionals, contributing in promoting nation's health and exposes them to global standards, and an institute which focuses on results and continues to raise the bar of the industry. Nikhil Ashtewale, कैसे हो sir? I'm fine. Thank you so much. We are glad to have you on our channel. Thank you. Guys, बहुत सारे students हैं. He's been in the industry since 30 years. There are thousands of students who pass out from his academy and today they are at the highest level and earning really good in the industry and killing it. So sir, first we'll discuss about your journey. Starting with my first question. 10-20 साल पहले फिटनेस इंडस्ट्री वाज अ न्यूबॉर्न बेबी. पे स्केल कम था, ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, नो सोशल मीडिया नथिंग. डिस्पाइट ऑल द रिस्क बैक देन, वो कौन सी एक चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया टू चूज दिस अनकन्वेंशनल करियर पाथ? One word answer, passion. Okay. Passion for fitness, passion for exercise, and then to build it into a career. Okay. मतलब ये मेरा पहले से ही मुझे फिटनेस इंडस्ट्री पसंद थी. Let me tell you, I am not originally from fitness industry. So after my education, academic education, and after that, I actually was working in car rental companies. अच्छा. So there was Hertz Car Rentals. उसके लिए मैंने काम किया, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है. Then I worked for Avis Car Rentals, which was again the license was with D. Oberoi's. Okay. At Nariman Point. But after working there for few years, मैंने ये realize किया that is not my passion. So I decided कि I should go for my passion. मैं ऐसे इंडस्ट्री में अपना करियर डेवलप करूँ जहाँ पर काम करने में मुझे मजा आए. Right. I should enjoy. And this is how I came into fitness industry. So how did your journey started? How you started your journey in the fitness industry? As you said, before 25 years, fitness industry was not so organized. Okay. जैसे आपने अभी बताया. Correct? So I first started searching for certifications. Okay. I directly went for an interview in a gym, in a particular gym. And the owner of the gym who took my interview, उन्होंने कुछ मुझे सवाल किए, okay? Okay, regarding slip disc, L4, L5, basic anatomy. And I could not answer. तो उन्होंने मुझे बताया that Nikhil, you need to do a proper certification. अभी इसके बारे में मुझे उस समय पता नहीं था. This is we are talking about before 25 years. 25 years, right? So then the owner of that gym told me that you should do a proper certification. उसके बारे में find out करो. After you complete your certification, then you come to us. Okay?
and obviously after the interview then we will select it. So ऐसे में मुझे पता चला कि fitness में certification होता है. Right. And then I searched for the certification. I completed my certification. When I decided to switch into fitness industry, I was from other industry. तो मैंने एक बात सोची थी, now I have to get into it. So I remember मैंने 2 certification एक साथ में किए थे. अच्छा. That was first was personal training certification Yeah. and second was nutrition. Understood. Then the certification in nutrition. Nutrition. So this is how I entered. And then after that I started upgrading. उसके बाद मैंने बाकी के certifications किए, कई सारे upgrade किया, special population किया. ओके थोड़े बहुत इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी मैंने उस समय थोड़ा सा किया उसमें. जहाँ जहाँ मुझे ऑनलाइन मिला वहाँ पर मैंने ऑनलाइन किया. दिस इज हाउ आई अपग्रेडेड. Okay. So this is how my journey started in fitness अच्छा. industry. So you started your journey as a personal trainer. I started my journey as a personal trainer. So sir, एक personal trainer, one of the top well-known lecturer teacher कैसे बनते हैं? You want to know about it. When I started my journey as a personal trainer, first thing I had to prove something Right. to everyone. Obviously. Okay? मेरे फैमिली को या मेरे साथ वाले लोगों को. I had to prove because I had a job ना. Right. I used to work for a car rental company. It was a proper job Yeah. in a good company. Right. वहाँ से switch over किया मैंने. So I had to prove certain things. So मैंने एक ठान लिया था that now since I'm in fitness industry, जो करना है मुझे इधर ही करना है. आगे बढ़ना है तो इधर ही बढ़ना है. So upgradation किए. Then I got very good results. जैसे सब लोगों का struggle होता है वैसे मेरा भी struggle हुआ. Initially I did not have personal trainings. Yes. लेकिन बाद में धीरे धीरे as per my counseling technique, okay, as I started training people, उनको काउंसल करता था. आई स्टार्टेड गेटिंग पर्सनल ट्रेनिंग्स. वो परफॉर्मेंस देख के मुझे चांस मिला टू बिकम अ फ्लोर मैनेजर. फ्लोर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा मैंने करने के बाद आई गॉट अ चांस टू बिकम अ जिम मैनेजर. Oh, great. तो ऐसे करते करते देन आई वेंट इनटू ऑपरेशंस इन फिटनेस इंडस्ट्री, Okay. सीनियर फिटनेस काउंसलर. ओके, then I decided that I saw this, that I had that passion of teaching. Okay. So I decided to become a faculty. Faculty, right. So then I got trained to become a faculty. So as a faculty, then senior faculty, and then head of the department for faculty. So ऐसा मेरा journey हुआ. Okay, this is before I started with IFSI. IFSI. तो मेरी academy start करने से पहले की ये मेरी journey. So sir, earlier when you were working as a personal trainer, तब कुछ realize हुआ like there is a major problem which has to be solved in fitness industry? There were certain problems during that period. In fact, वो problem आज भी कहीं कहीं पर मुझे दिखता है. But still now fitness industry is very much organized. But उस समय तो बिल्कुल organized नहीं था. So the trainers did not have that security. Right. ये एक बहुत बड़ा problem मुझे लगा. या जो एक HR होना चाहिए, थर्ड सेक्टर में उनका HR होता है या HR policies होती है, वो नहीं था. Trainers were not given, you know, the what do you say, offer letters, or there was no proper system that when you're quitting, okay, there has to be a proper notice given. ये चीजें थी. Right. धीरे 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 I saw that it got organized, but अभी भी उसमें थोड़ा सा और काम करना बाकी है. So sir, one thing not everybody knows that you were a national level powerlifter. So ये powerlifting journey कैसे शुरू हुई and how did powerlifting, a sport, help you build what you are today? Okay, so initially I started with bodybuilding. अच्छा. So that was my passion, bodybuilding. Understood. So bodybuilding competitions खेले मैंने. उसके बाद I switched over to powerlifting. मैंने powerlifting भी किया और बाद में मैंने weightlifting भी किया है. Oh. Okay, but powerlifting में I went up to national level. So 3 times gold medalist in powerlifting. So yeah, again this was my passion. But how did it help me? So it actually helped me to become a successful fitness professional or to become a successful faculty. Yeah. Or even it is helping me even today. Because whatever that I learned in all these years, जो भी knowledge मैंने लिया, okay, पढ़ के industry से, whatever knowledge, okay, और whatever things that I am teaching today, जो भी मैं research करता हूँ, या जो studies मैं पढ़ता हूँ और उसमें से मैं अपने syllabus को upgrade करता हूँ, या syllabus में वो studies को मैं involve करता हूँ. But those things I apply on myself also. So that is practical application. I apply it on myself as well as the people whom I am training, the students or the powerlifters whom I am training or the bodybuilders whom I am preparing. Right. So because I am an athlete, because I am a powerlifter, I've been a bodybuilder, मैंने weightlifting भी किया है. You know, all that knowledge, it helps me a lot. Practical application में भी काम आता है. काम आता है बहुत. Okay, and I believe I've been always
believing this, that if you are in fitness industry, it is very, very important that you get involved in some amount of activity, some amount of sport, okay? That maintains discipline in yourself, first of all. Yeah, that's right. I firmly believe that your body should be in shape because you are a role model, correct? Correct. So it should be there. It helps you in following a proper diet pattern, Hmm. proper discipline in exercise. Basically, your lifestyle also improves. So I am a firm believer in that. और इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया. Even today, I follow the same things. So even today, you follow your meals, you follow your diet, you follow your workout, everything. Yes, I follow my regular meals. I have a proper 6-meal pattern. Oh. Then I have my practice or my training. Hmm. Okay, my training again is just like powerlifting training, though I also focus on other body parts. Yeah. Okay, I am into hardcore muscle building. Mhm. और आई ऑल्सो गो फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज, वो भी मैं करता हूँ. Okay. सो प्रॉपर ये सारी चीजें इंस्पाइट ऑफ दैट बिजी स्केड्यूल, ये मैं उसको अपने स्केड्यूल में रखता हूँ उसको. सो इट इज देयर. The rise of entrepreneurship. आपने सारे roles explore किए, right from a personal trainer to a gym manager to a teaching faculty. But what motivated you to be an entrepreneur? Like खुद का कुछ शुरू करना है. So as I said, how my journey started, I was working somewhere else. I never thought that I would come up with my own venture. Okay. This was never planned. Now, due to some reasons, I had to quit the earlier job. So then we decided, me and my wife. So even she's into IFSI. Okay. She looks after the operations part, operation and administration. So we both decided that we should start with a gym management company. So we started with Transform Fitness Private Limited. Under this particular company, we used to manage gyms. So उस समय हमारे पास 5 gyms थे. There were 4 gyms which were in Mumbai, 1 gym in Goa. So we were running that gym. But again, managing a gym, and I was more passionate about lecturing. That was my passion. So we used to manage that gym, those gyms. There was no problem. Okay, but because of this passion again, I decided that I should start with my own academy. And there was one more reason that I need to tell you. Yeah. Now, when you're managing gyms, you need trainers. Trainers. So now, how do you get trainers? I always used to prefer the trainers which are trained by me. So even this was a reason behind this. Yeah. Okay. So then, after maybe 1.5 to 2 years, in 2015, we started with Integrated Fitness and Sports Institute, IFSI, this academy. Okay. And this is how IFSI originated. All about IFSI. Let's explore your academy. आपकी academy को explore कर ले. तो IFSI में sir, what are the modes of teaching and the courses, the workshops you offer? In IFSI, the modes of teaching, you have a offline course and you have a semi-online course. So offline course means what? So the entire theory, lectures as well as the practicals, demos, they all are offline. So you have offline students coming here to the academy. There is something known as semi-online. So semi-online means what? Semi-online means the theory lectures are conducted online. Okay. But when it comes to practicals, the students have to be here at the academy. Academy. Correct? Now, if you look at semi-online courses, the way it is been organized, अगर आप हमारे classrooms वगैरह देखते हो जिस तरीके से, या वहाँ पर हमने जो पूरा setup किया है, cameras and all that, they are so powerful that if I write whatever that I want to explain, so there is a presentation, proper presentation, whatever I want to write, जो भी मुझे board पर लिखना है, या human skeleton के ऊपर मुझे कुछ दिखाना है. So वो जो online के students होते हैं, उनको ऐसी feeling आती है कि वो actually classroom में बैठे हुए. Okay. Okay, so online का मतलब ऐसा नहीं होता. They can ask questions, I can answer their queries, ये सारी चीजें वहाँ पर होती है. Plus उसमें if you look at the languages, तो उसके अंदर we have a batch which is Marathi and Hindi batch, and then there is also a batch which is a English batch. Okay. So ऐसे भी है कि जैसे for example there are many people जो हमारे पास South से आते हैं. Okay, they want to do a course. So even there are some students that I have they have completed course from Dubai. So उन्होंने सबने ये semi online course किया है. So they all go for generally English batches. Generally ऐसा एक ऐसा इस तरीके का हमारा पूरा framework. हाँ, मतलब languages में भी proper distribution है कि हाँ, because see the thing is कि when you talk about syllabus of fitness, fitness के syllabus के बारे में आप बात करते हो. आप जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जब आप देखते हो, टॉपिक्स देखते हो, जैसे एनाटॉमी, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी, अभी यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ड्स है ये लैटिन और ग्रीक में होते हैं. अंडरस्टैंड. करेक्ट. तो अभी उसको अगर मुझे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, मुझे मराठी में एक्सप्लेन करना है, हिंदी में एक्सप्लेन करना है,
तो वो भी हमारे फैकल्टीज करते हैं, Okay. करेक्ट. बट अगर अगर कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, Okay. दे अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश. Yeah. So जैसे जनरली साउथ में देखोगे या इंडिया के बाहर से बाहर अगर से, कोई हाँ, है, हाँ, सो उनके लिए देन इट इज अ इंग्लिश बैच. yes. The courses, workshops you offer. What are the courses, workshops you offer? The courses that we have first course that we have, which is the fitness trainer course. Then you have the diploma in personal training course. Then we have a nutrition course, which is nutrition for fitness and exercise performance as well as sports. Okay, where we talk about nutrition for normal people, okay, sedentary lifestyle, sports people, exercising people. Then we have a course which is special population or the advanced personal trainer course, where we talk about the medical conditions. Okay. After that, we have the yoga course, Acha. which is basically the advanced yoga course, so which is for masseurs. Apart from this, there are various workshops which are very, very successful that we've been conducting for years and years. So we have a workshop on the powerlifting course, the powerlifting workshop. Then we have the multi-level functional training workshop. We have a bodybuilding workshop, which is advanced bodybuilding workshop, as well as we have a workshop on natural bodybuilding. So all those people who want to develop a very good physique naturally, तो उनके लिए भी वो वर्कशॉप है. उसके अलावा हमारे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, जैसे वेबिनार ऑन मैनेजिंग योर डायबिटीज with lifestyle changes, management of high blood pressure, low blood pressure, kidney stone, management of uric acid levels, then management of PCOD, PCOS, thyroid problems. ये सारे इतने सारे workshops as well as courses है. Okay, तो ये सारे students हमारे जो है, they don't end up doing only the course, but then आगे चल के वो अपने आप को upgrade करते हैं. And this is how they gain more and more knowledge. Basically, this is skill development. Oh, that's great. अभी सर ये क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत सारे ट्रेनर्स ने पूछा है. उन्हें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोर्स एंड डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स, क्योंकि दोनों में जो मनी गैप है या फिर यू कैन से द प्राइस गैप इज द डिप्लोमा इज ऑन अ मच हायर साइड. ओके, सो व्हाई certified fitness trainer and why diploma in personal training? So what's the difference? See, when we talk about certified fitness trainer course, so that is a course where you become a fitness trainer, okay, or a fitness instructor. Obviously, यहाँ पर जो lectures होते हैं, इसमें जो basic fundamental topics है, okay, जैसे काइनेसोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जो एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए जो ज़रूरी है, एंड फॉर यू टू ट्रेन पीपल, ओके, ये यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग, देन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूरोपियन रेप्स. Okay, so it is accredited by European reps, okay, which is officially recognized by them. Not only by European reps, but also by SPFL-SC, which is Sports Physical Education Fitness Leisure Skill Council, which is by the central government. Okay, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर additional lectures भी होते हैं. Okay, like you have various lectures on marketing. Marketing is a very important aspect nowadays. Yeah. Whether you are a personal trainer or a nutritionist, marketing के ऊपर सारी चीजें होती है. Then there are various lectures on branding. Okay, तो ऐसे additional lectures उसमें होते हैं. Okay, और वहाँ पर it comes under European Qualification Framework Level 4. Okay. Correct? तो it comes under European reps. So what does level 4 stand for in European reps? It is a course which comes under Europe Active. Okay. Okay, which is EREPS. अच्छा. Full form of EREPS is European Register for Exercise Professionals. यहाँ पर जो उनको qualification दिया जाता है, वो that qualification is aligned with European standards. अच्छा, understood. It is aligned as per the European standards. Okay. Correct? More than 40 countries they come under European reps. So 40 countries से ज़्यादा countries इसके अंदर आते हैं. Okay? और वहाँ पर मिलने वाला जो उनको qualification है, it comes under European Qualification Framework, which is EQF Level 4. तो अभी Level 4 क्या है? So there are various levels. अगर आप European countries में जाते हो, जहाँ पर which are connected with EREPS, affiliated with EREPS. So वहाँ पर total 8 levels होते हैं. EQF Level 2, Level 3, Level 4, ऐसे total 8 levels are there. अभी मैं अगर आपको बोलूं,
यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन करते हैं डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग, उनको EQF लेवल 4 मिलता है, करेक्ट? सो एग्जाम्पल, EQF लेवल 3 क्या है? सो दैट इज अ सर्टिफिकेशन फॉर फिटनेस इंस्ट्रक्टर or group instructor, okay, in the European countries, correct? But when we talk about EQF level 4, so that is a proper certification for personal trainer, okay, and also specialized instructor, correct? So now those people who do diploma in personal training, they not only get certificate from IFSI, they also get a certificate from they also get certification from EREPS, and plus they also get one more certificate from SPFLSC. अभी ये जो certificate है, it is a very important document of portability if they want to work in other countries. मतलब अगर वहाँ पर जाके उनको काम करना है, जो countries में EREPS है, they don't have to start from zero. Okay, but let me make it very clear कि हर एक country का अपना अपना एक rule भी होता है. So some countries में there are small exams that they have to give, छोटे-छोटे courses, but they don't have to start from zero. Understood. So ये difference है actually. अब सर समझो एज आई एम NSCA सर्टिफाइड ट्रेनर, अगर किसी ट्रेनर ने NSCA किया है या फिर ACSM किया है या फिर NASM नाज़म किया है या फिर कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए हैं एंड दैट ट्रेनर वांट्स टू मूव अब्रॉड, क्या उसे फिर भी EREPS करना होगा? See, what we need to understand here is that every particular country, हर एक country ने, okay, उन्होंने जिसको recognize किया है, जिस organization को उन्होंने recognize किया है, उनका certification वहाँ पर चलता है, okay? तो अगर आप कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट ACSM देख लेते हो, अगर आप देखते हो, तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर जिन्होंने ACSM को एक्सेप्ट किया है, जिनके गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट किया है, तो उनका सर्टिफिकेशन वहाँ पर चलेगा, ओके? लेकिन आपको फिर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उनको वहाँ से दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है वहाँ पर, ओके? मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इधर से अगर सर्टिफिकेशन किया, वहाँ पर जाके डायरेक्टली आप जॉब पर लगोगे. सो ये आपको, जैसे मैंने अभी आपको यूरोपियन रेप्स के बारे में बताया, that if somebody does European reps in IFSI and he wants to work in some European country, okay, so at least he doesn't have to start from zero. He has a certification which is EQF level 4. Okay, तो अभी इसके गाइडलाइंस हमको यूरोपियन रेप्स देती है. सो जो भी ट्रेनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करते हैं, उनको ये चीजों की मालूमात होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Am I clear? So इससे क्लियरिटी आती है. एक विजन मिल जाता है कि मुझे कैसे परस्यू करना है. हाँ, तो आपको अगर आपने प्लान करके रखा है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाके काम करना है, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन पूरी निकालो. अभी मैं अगर यूरोपियन रेप्स की बात करूं, तो मोर देन 40 कंट्रीज, करेक्ट? और अभी रिसेंटली देयर आर सर्टेन गल्फ कंट्रीज आल्सो व्हिच आर अफिलिएटेड विद देम, व्हिच आर कनेक्टेड विद देम. ओके, तो ऐसे जरा इंफॉर्मेशन अगर वो निकालेंगे तो उनको उसका फायदा मिलेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. अगर हमारे इंडिया में कोई लेट्स से कुकिंग में कोई क्वालिफिकेशन करता है टू बिकम अ शेफ, करेक्ट? नाउ if he has got that particular degree, let's say hotel management or whatever that degree he has, now when he takes that degree to some other country, on that particular degree वो वहाँ पर जाके डायरेक्टली काम नहीं कर सकता. हाँ, भले यहाँ का वो बेस्ट डिग्री होगा, बट वहाँ जाने के बाद उसको जरा फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट दो आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना है. आर देयर सर्टेन एग्जाम्स और देयर इज अ सर्टेन कोर्स फॉर दैट. सो एटलीस्ट ही डजंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जो हर सेक्टर में होता है वही फिटनेस इंडस्ट्री में होता है. Now talking about the core of fitness programming and sports specific training, बहुत सारे strength and conditioning coaches हैं and इंडिया में as of now strength and conditioning इतना boom नहीं हुआ है. Personal training boom हुआ है, but when I talk about conditioning, it's not just about functional training. It's about movement training. It's about movement which an athlete carries out in his day-to-day life. So talking about the core of fitness programming and sports specific training like hypertrophy, that is periodization like hypertrophy phase, general strength phase, strength, power, strength, speed strength. Indian academies क्यों नहीं सिखा रहे? That strength and conditioning coaches are asking me कि Indian academies periodization क्यों नहीं सिखा रहे? Why coaches are only revolved around corrective exercises, anatomy and nutrition? Actually, there has to be a lecture on periodization and programming. So I don't know about other academies, but I can talk about my academy. मेरे academy में आपको हमेशा, हमारे academy में आपको हमेशा periodization and programming का आपको यहाँ पर एक proper lecture syllabus में आपको मिलेगा. Okay.
as you correctly said, it is very important for every particular personal trainer to understand this हाँ, when he is training a general population or he is training a athlete or a sportsman. sportsman, तो उनको पीरियडाइजेशन प्रोग्रामिंग उनको समझना बहुत जरूरी बहुत है. जरूरी. ओके, जैसे हम यहाँ पर अगर मैं हमारे एकेडमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिलेबस में हम बोलते हैं अबाउट द कॉग्निटिव फेज. सो हम जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो कॉग्निटिव फेज जहाँ पर वो सीखता है इनिशियली. ओके, देन यू हैव द रेजिस्टेंस फेज जहाँ पर उसके बॉडी में माइक्रोट्रोमा होता है. ओके, और उसके बाद देन यू हैव द अलार्म फेज कि अलार्म फेज में जहाँ पर वो माइक्रोट्रोमा को अभी रिपेयर करके देन इन देयर इज हाइपरट्रोफी. ये फेजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. समबडी इज एक्सरसाइजिंग. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पॉपुलेशन. मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि हमारे पर्सनल ट्रेनर ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो फिटनेस के लिए जिम में आ रहे हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एथलीट्स तो उनकी पीरियडाइजेशन, उनकी प्रोग्रामिंग पूरी अलग होती है. नाउ दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द स्पोर्ट हाँ, इन विच दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन्वॉल्व. इन्वर्ड. जैसे अगर मैं एक पावर लिफ्टर हूँ तो पावर लिफ्टिंग में अगर आपने देखा ओके तो वहां पर उनके ट्रेनिंग में देयर आर वेरियस फेजेस अगेन, देयर आर वेरियस सीजन्स. सो यू हैव अ हेवी फेज. ओके, देन यू हैव अ प्री कॉन्टेस्ट फेज. हाँ, एक प्री कॉन्टेस्ट फेज होता है. ओके, बाद में एक पीक वीक होता है कि उनके कॉन्टेस्ट के पहले एक हफ्ते पहले उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी. तो ये सारी चीजें होती है. ओके, तो वहां पर भी प्रोग्रामिंग एंड पीरियडाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये हर एक पर्सनल ट्रेनर को सिखाना बहुत जरूरी है. अगर आपको अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो आपके क्लाइंट जनरल पॉपुलेशन में से हो, ओके, या आपके पास स्पोर्ट्स और एथलीट आते हैं, उनके स्पोर्ट्स में उनको आगे बढ़ना है, उनको प्रिपेयर करना है, अगर पीरियडाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग के बारे में एक पर्सनल ट्रेनर को नॉलेज नहीं होगा, वेरी इजीली पीपल विल गेट ओवर ट्रेन्ड. उनको बहुत इजीली दे विल गेट ओवर ट्रेन. उनको इंजरीज होंगे, उनको इन्फ्लेमेशन होगा, उनको जॉइंट पेन होगा, उनकी इम्यूनिटी सफर होगी, दे विल नॉट गेट रिकवरी, स्लीप का प्रॉब्लम होगा उनको. तो ये सारे इश्यूज होंगे. क्योंकि मैंने भी देखा था एक, आई हैव सीन अ ट्रेनर हु वाज नॉट वेल वर्स्ड इन प्रोग्रामिंग, सो ही वाज ट्रेनिंग अ क्रिकेटर इन हिज स्ट्रेंथ फेज. क्रिकेटर का एक स्ट्रेंथ फेज है तो उनको प्रोग्राम ट्रेन कर रहे थे. सो ही वाज गिविंग दैट एथलीट 1 RM 1 rep max. So I asked him, instead of giving him 1 rep max could cause him an injury. Despite that आप उसको 3 rep max देके 1 RM का आप कैलकुलेशन कर सकते थे. So that would be much better. So सर IFSI के तरफ से आगे जाके एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स, हम प्योर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं इसकी प्लानिंग भी कर रहा हूँ. इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास एक कोर्स है विच इज मास्टर ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो मास्टर ऑफ एक्सरसाइज में वी टॉक अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स. ओके, जो एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है, और वो एडवांस लेवल का कोर्स है वो. ओके, इनफैक्ट उसके लिए हमने क्राइटेरिया भी रखा हुआ है. अभी जब मैं देखिए क्या होता है, कॉमन टेंडेंसी होती है जब लोग आते हैं इंक्वायरी करते हैं तो वो जब सुनते हैं कि एडवांस कोर्स तो उनको डायरेक्टली एडवांस कोर्स करना होता है. बट दे डोंट अंडरस्टैंड एडवांस कोर्स आप तब कर पाओगे जब आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है. तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर आपने डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग किया है, ओके, तो अगर वहां पर आपके टेक्निक अच्छे है, आपका फंडामेंटल एकदम क्लियर है, तो उसके बाद ही आप वो मास्टर इन एक्सरसाइज ये कोर्स आप कर सकते हैं जहाँ पर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हम सिखा सकते. ओके, सो अगेन दैट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप. राइट. हाँ, क्योंकि बेसिक्स सीखना वो बहुत जरूरी है. Right, I can give you a very simple example in this. For example, let's say in master in exercise, we talk about Olympic lifts. Okay, Olympic lifts के बारे में हम लोग सिखाते हैं, which is obviously जो बहुत ही ज्यादा टेक्निक की जरूरत है. It is a different skill set again. Correct? जिसको ओलंपिक लिफ्ट सीखना है, अगर उसने जिंदगी में कभी स्क्वाट ही नहीं किया है, उसने जिंदगी में कभी डेडलिफ्ट ही नहीं किया है, उसको बेसिक एक्सरसाइजेस पता ही नहीं है, लेट्स से, तो वो कैसे करेगा ओलंपिक लिफ्ट्स? वो कैसे करेगा? बहुत डिफिकल्ट होगा, हो ही नहीं पाएगा. उसके प्रोप्रायोसेप्शंस अगर यहाँ पर डेवलप नहीं है, ये बेसिक मूवमेंट्स जो उसके फिटनेस के लिए जरूरी है, ऐसे एक्सरसाइजेस में अगर उसके प्रोप्रायोसेप्शन डेवलप नहीं है, उसके सीएनएस को वो पता ही नहीं है, उसके ब्रेन को वो पता ही नहीं है मूवमेंट, तो वो ओलंपिक लिफ्ट्स कैसे करेगा? इट इज हाईली इम्पॉसिबल. नहीं हो सकता. क्लियर? इंजरी होने के चांसेस इनफैक्ट वहां पर है. बॉडी इज नॉट कंडीशनड ओनली, नो. सो इसीलिए ये क्राइटेरिया हमने इस तरीके से. पोस्ट सर्टिफिकेशन जर्नी. Day 1 post certification, a trainer has to work as a floor facilitator और a general trainer. पहले 4 से 5 महीने उसको काम करना ही है. इस फेज में सर बहुत सारे ट्रेनर डिमोटिवेट होते हैं
सो ये फ्लोर ट्रेनर पेशेंस फेस कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि वो आपका एक फेज़ होता है जहाँ पर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। आपको फ्लोर के ऊपर आपको कैसे लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को हैंडल करना है, क्लाइंट्स को हैंडल करना है, ओके? उनको आपको कैसे ट्रेनिंग देना है, उनका पोस्चर कैसे चेक करना है, ओके? हाउ टू मोटिवेट देम। ये सारी चीज़ें, ये एक्सपीरियंस आपको एज़ अ फ्लोर ट्रेनर आपको मिलता है, ओके? और मेरा सजेशन हमेशा ये होता है हमारे स्टूडेंट्स को कि आप फ्लोर ट्रेनर पहले बनिए, because that is the phase where you are learning, okay? Not only that, you are developing a PR, राइट, रैपो बिल्डिंग। rapport building आपका हो रहा है। हाँ। क्योंकि लोगों को पता चलता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी काउंसलिंग टेक्निक कैसी है, आप कैसे चेक करते हो, आपका स्पॉटिंग टेक्निक कैसा है, आप कैसे मोटिवेट करते हो। और ये अगर आपने किया, आपका रैपो बिल्डिंग अगर बहुत अच्छा हो गया, those people, those clients are going to approach you for personal training. राइट। So it is like a stepping stone in your career. क्योंकि हाँ, क्योंकि सर जब मैं अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ पर्सनल ट्रेनर, सो देयर वाज अ विद एन ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर वाज अ सीनियर ट्रेनर वर्किंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सारे ट्रेनर्स को 3 मंथ्स जनरल ट्रेनर बना देते, देन उनको प्रमोट कर देते। जब मैं जनरल ट्रेनर बना था तो हमारे टाइम पे हायरिंग नहीं हो रही थी उतनी, सो आई हैड टू बी अ जनरल और अ फ्लो फैसिलिटेटर फॉर 6 to 7 मंथ्स। सो मैं ना वो सर से हमेशा कंप्लेन करता था कि सर यार मेरे को 7-7 महीने जीटी खड़ा कर रहा है। सो ये बोलते थे कि ये तेरा हनीमून फेज है, ऐसे ध्यान में रख। सो दैट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वी यूज्ड टू कॉल इट अ हनीमून फेज, चिल फेज। और इस इतना ही कर कि सबको नॉलेज देता रहे बस। और जिस दिन तू पीटी बनेगा तब देखना क्या होता है। सो मैंने वही किया, मैं नॉलेज सिखाता था, रैपो बिल्डिंग होता था। और जब पीटी बना, इन 1 to 2 months आई हैड क्लोज टू 15 to 16 क्लाइंट्स विदाउट इवन टेकिंग एन असेसमेंट। कि सर मैं पर्सनल ट्रेनर बन गया, ओके टेल मी योर रेट, आई विल एनरोल। सो इट वाज दैट क्रेजी कि मुझे ये भी करना है, मेरे को फिटनेस असेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, मुझे क्लाइंट्स मिल गए थे राइट फ्रॉम द फ्लोर। सो यू आर राइट कि द फ्लोर ट्रेनर फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैपो बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग विद द क्लाइंट्स। मैं तो आपको बोलूंगा यू आर वेरी लकी। मैं आप अगर मेरी जर्नी अगर आप सुनोगे, सो व्हेन आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड एज अ आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनर, जनरल ट्रेनर, फ्लोर ट्रेनर। पहले 2 महीने आई वाज एन इंटर्न, मुझे सैलरी नहीं मिली। ओके। सो वो चेक करना चाहते थे कि मेरा ट्रेनिंग कैसा है, ओके? बट मैंने आपको बोला था दैट आई हैड टू बिकम, मेरे को कुछ भी करके आई हैड टू प्रूव। तो 2 महीने मैंने एज ए इंटर्न काम किया वेयर देयर वाज नो सैलरी। उसके बाद मुझे सैलरी मिली। उसके बाद मेरा जो आई वाज अ फ्लोर मैनेजर, उसके बाद लगभग मुझे 7-8 महीने तक आई डिड नॉट हैव क्लाइंट। बट वो जो फ्लोर ट्रेनर का मुझे एक्सपीरियंस आया, और जैसे मैं वहाँ पर क्लाइंट्स को हैंडल करता था, जैसे मैं उनको कन्विंस करता था, उसके बाद जो मेरे पास क्लाइंट आने शुरू हो गए, ओके, दैट वाज लाइक आई हैड 15 क्लाइंट्स, 20 क्लाइंट्स। ओके। तो वो ऑब्वियसली दैट इज योर स्ट्रगल फेज and that is your learning phase. Yes. Everybody has to go through that particular phase. Yeah. And you should not give up वो phase में. You have to take it like a challenge. और वो definitely आपको मदद करेगा। अब बहुत सारे ट्रेनर जॉब्स क्विकली जंप शिफ्ट करते हैं ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, कि बहुत सारे जिम्स ये बोलते हैं आपको पहले दिन से हम पीटीज देंगे, हम आपके रेट्स बढ़ाएंगे। सो जॉब्स क्विकली जंप और शिफ्ट कर रहे हैं। सो डज इट अफेक्ट द रेज्यूम बिल्डिंग ऑफ अ ट्रेनर? या इट विल अफेक्ट द रेज्यूम बिल्डिंग ऑफ द ट्रेनर, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉयल यू आर टू फॉर अ कंपनी वेर यू आर वर्किंग इन। ये एक क्वेश्चन आता है रेज्यूमे के ऊपर। अगर बहुत सारे जिम्स है तो ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, देयर आर क्वेश्चंस कि ये जिम में क्या हुआ, ये जिम में क्या हुआ, ये व्हाई डिड यू लीव। तो इट डज नॉट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन, ओके? हाँ, अनटिल अनलेस कि अगर कोई गलत चीज हो रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग, और आपने अगर छोड़ा तो वो अलग बात होती है। बट आई थिंक एज अ ट्रेनर और एज अ पर्सनल ट्रेनर थोड़ा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा टाइम बिताना, और वहाँ से बाद में अगर इफ़ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आप आगे जाना। लेकिन जब एवरीबडी हैज़ गॉट अ राइट टू ग्रो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कब आएगी आपको पता नहीं। सो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आई, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगेन आई वुड से दिस वेरी स्पेसिफिकली, it should be systematic, Right. giving proper notice period, getting the offer letter or whatever. मतलब वो systematically करेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, एज अ पर्सनल ट्रेनर आप अगर खुद को बेच नहीं सकते, देन यू हैव टू हसल अ लॉट। सो फिटनेस इंडस्ट्री 2026 ट्रेनर्स के लिए सेल्स कितना जरूरी है सर? It is very very important. Sales and marketing is very important in every particular sector, including fitness industry. Okay. और
एक पर्सनल ट्रेनर के लिए या एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को मार्केट करना. मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इट इज अ पर्सनल ट्रेनर और अ न्यूट्रिशन. और मैं तो बोलूंगा कि जितना आप अपने आप को अपग्रेड करोगे उतना आपका मार्केटिंग और स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब आपने क्या अचीव किया है इंडस्ट्री में ये आपको लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है. ओके, योर नॉलेज. फिर वहां पर आपका नॉलेज हो गया या आपने क्या रिजल्ट्स दिए अपने क्लाइंट्स को. ओके, पहले आपके क्लाइंट कैसे थे, उनका फिटनेस लेवल कैसा था, और अभी 6 महीने के बाद आपने ट्रेनिंग देने के बाद उनकी फिटनेस लेवल कैसी है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, पहले बॉडी कॉम्पोजिशन क्या था. ओके, अगर कोई मेडिकल कंडीशन के है तो उनकी स्ट्रेंथनिंग में कितना फर्क पड़ा है. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को दिखाना. दैट इज मार्केटिंग. ओके, so it is very very important if you want to have more and more clients in this industry. So again, let me tell you about marketing and branding. Again, for personal trainers it is very important to learn. So even we also have a webinar on marketing and branding in IFSI. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एकेडमीज से या बहुत सारे जिम्स से पर्सनल ट्रेनर्स हमारे पास आते हैं वो पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, वेयर वी टीच अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे मैंने बताया, मैं ये पूरा जो वीडियो रहेगा हमारा उसके अंदर एक गूगल फॉर्म ऐड करूंगा वेयर एनीवन हु वांट्स टू इंक्वायर रिगार्डिंग IFSI दे कैन फिल अप देयर डिटेल्स, और वो फॉर्म आप फिल कर दो देन ऑटोमेटिकली आप सर से कनेक्ट कर सकते हो. मैं एक फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लगाने वाला हूँ. हाँ, सो आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेशन मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स हैव दैट नो इट ऑल माइंडसेट, और वो खुद को अपग्रेड ही नहीं करते इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड वर्कशॉप्स. और अभी फिलहाल हर दिन इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नया आ रहा है. So how important has upgradation been nowadays for trainers? See, what we need to understand is, as a personal trainer, as a fitness professional, it is a very competitive world. Competition हर एक जगह पर है. हर जगह और अभी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन. बहुत ज़्यादा. ओके, और इस कंपटीशन में अगर आपको एक अपना खुद का ब्रांड बनाना है, बनाना. you have to get upgraded. Upgraded, yeah. Okay, you cannot have this attitude that I know everything. इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मैं भी सीखता हूँ. ओके, एंड when you say this that I know everything, that is the end. That is the end actually, because we all are learning. आज आप भी सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ. In every aspect of life we are learning. Correct, including fitness. So for every particular personal trainer or every particular person who is working in the fitness industry, it is very important to upgrade his knowledge, her knowledge. Correct, do various courses, do workshops, do webinars. अपने नॉलेज को और बढ़ाइए और बढ़ाइए. तो जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना आपके पास टॉपिक होगा बात करने के लिए. वी आर वेरी सिंपल एग्जांपल. वी वर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग. यू हैव अ पर्टिकुलर पर्सनल ट्रेनिंग, अ गर्ल और अ बॉय, उन्होंने अपना पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया. ओके, अगर उन्होंने अपग्रेड किया, अगर उन्होंने न्यूट्रिशन कोर्स किया या स्पेशल पॉपुलेशन कोर्स किया, वो अपने खुद के मार्केटिंग में जो वो रील्स बनाएंगे, जो वीडियोस बनाएंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, व्हाटएवर, जो भी वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो लिखेंगे, टॉपिक पे लिखेंगे, दे विल हैव मल्टीपल टॉपिक्स टू टॉक ऑन. राइट. लेकिन अगर किसी के पास खाली पर्सनल ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन है, हाउ विल ही टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, हाउ विल ही टॉक अबाउट स्पेशल पॉपुलेशन केसेस. अगर किसी ने क्वेश्चन किया that I have a slip disc problem in L4 and L5, or I have a dislocation, shoulder dislocation. Please tell me the exercises that I should do and all those exercises that I should not perform. Right. How will you answer? Then answer. And if you talk about medical conditions, if you talk about nutrition, everybody has आज का जो फिटनेस इंडस्ट्री में हमारा जो क्लाइंटल है, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है. There are questions on diabetes, there are questions on nutrition, there is a question on protein, Right. there is a question on healthy fats, there is a question on vegan diet, there is a question about ketogenic diet, carb cycling diet, है कि नहीं? तो ये सारे questions होते हैं. तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप बात कैसे करोगे, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, और आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे डेवलप होगी. So that is the most important thing. How will your client develop faith in you? Right. So hence upgradation is very very important. Learning never stops. This is what I've been following, and this is something that I've been telling my students also. Learning never stops. Because as a strength and conditioning coach as well, I basically train athletes and sometimes I train celebrities as well.
तो बहुत सारे मुझे आई वॉज गुड इन बॉडी बिल्डिंग, सो मैं बॉडी बिल्डिंग पे रह सकता था, बट बाद में आई रियलाइज कि मुझे सस्पेंशन ट्रेनिंग भी सिखाना है, जैसे TRX। करेक्ट, इट इज द बेस्ट ट्रेनिंग, लाइक यू हैव टू टारगेट योर कोर, तो TRX करो। देन वाइपर होता है, वाइपर ट्रेनिंग सीखना। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि आप अगर एक क्लाइंट के ऊपर एक ही, आप अगर उसको चेस्ट ट्राइसेप्स बैक बाइसेप्स कितने दिन सिखा सकते, इवेंचुअली इज गोना गो to someone who knows even better than you. So it's like that. Let me tell you one more. Let me add one more point here. कि people talk about, you know, कि upgrade करना है तो उसमें fees लगते हैं या पैसा लगता है. See, what everybody needs to understand, it is a investment that you're doing. Right. आप जब खुद का एक बिजनेस खोलते हो तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हो. Right. तो आप जब इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा ना आपको. Right, right. सो ये इन्वेस्टमेंट है. ओके, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट. आप जितना सीखोगे उसमें आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उतना लोग आपको जानेंगे. सो दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट. Right. Absolutely right. So, sir, we all know that fitness industry has been a male-dominated industry from a long period of time. But now, लड़कियां आ रही है और they are into powerlifting, into bodybuilding, with absolute good physiques, and also in personal training as well. They are killing it. Correct. अभी हम योगा में भी देख सकते हैं बहुत सारी फीमेल्स उभर रही है, that they are giving their knowledge on social media as well. So फिटनेस इंडस्ट्री में अभी एक फीमेल को अगर ग्रो करना है तो कितना स्कोप है? मेरे अनुसार लेडीज को, गर्ल्स को फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है. Okay. आपने सही बोला कि एक समय था कि फिटनेस इंडस्ट्री वाज मेल डोमिनेटेड सेक्टर. लेकिन अभी अगर आपने देखा, अगर मेरे पास बहुत सारे जिम्स की जो रिक्वायरमेंट आती है ट्रेनर्स की, उसमें रिक्वायरमेंट फीमेल ट्रेनर्स की होती है. ओके, तो फीमेल ट्रेनर्स उनको चाहिए होते हैं. ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट, जो बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी अगर आपने देखा तो जिम्स के ओनर्स है या वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट करने वाले लोग हैं, दे आर इन टच विद अस. तो दे स्पेसिफिकली आस्क फॉर फीमेल ट्रेनर्स. ओके, उसके बाद बहुत सारे हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स है, उन्होंने अपना खुद का फिटनेस स्टूडियो उन्होंने स्टार्ट किया है. ओके, देयर आर मेनी फीमेल ट्रेनर्स हु आर एक्चुअली ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज आल्सो. ओके, दे आर, जैसे आपने बोला फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है बहुत सारे. ये मैं हमारे स्टूडेंट्स में ही बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. द अदर डे वी हैड अ कोर्स, मल्टी लेवल फंक्शनल ट्रेनिंग कोर्स. तो उसमें एक लड़की, शी इज फ्रॉम एवला, नासिक के पास एक तालुका है, वहाँ से है. और उन्होंने मुझे बोला दैट शी हैज़ कंप्लीटेड पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम IFSI और अभी वो ये मल्टी लेवल फंक्शनल ट्रेनिंग कोर्स कर रही है. तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका एवला में उनकी जिम है और वहाँ पर पूरे एवला में ये पॉपुलर है दैट शी इज़ द ओनली फीमेल ट्रेनर. सो शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ फीमेल क्लाइंट्स वहाँ पर. उन्होंने मुझे फोटो वगैरह भी बताया उसके. सो शी इज़ पॉपुलर एज अ female fitness trainer, a female personal trainer within that particular district or that particular taluka. Correct? So the same condition is here in Mumbai, Pune, Nasik या गोवा में female trainers की बहुत ज़्यादा requirement. Okay, and they set up their own businesses. अच्छा, अगर मैं nutrition के course में बात करूँ, so there are many girls who are into nutrition. Right. मतलब ये यहाँ पर personal training course करने के बाद वो nutrition course करते हैं. Nutrition के बाद. Okay, then they guide people for nutrition. ओके, तो वहाँ पर उनका इनकम बढ़ता है. ओके, तो और जैसे आपने बताया पावर लिफ्टर्स बहुत सारे हैं. हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं IFSI के, पावर लिफ्टिंग में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक गए हुए हैं, वैसे बहुत सारे हमारे फीमेल पावर लिफ्टर्स हैं. ओके, सो ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर लेडीज इन फिटनेस इंडस्ट्री और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. करेक्ट. डिसिप्लिन में भी अगर आपने देखा तो आप देखोगे दे आर वेरी मच डिसिप्लिन. या व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट, व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, ओके, या व्हेन इट कम्स टू अपग्रेडेशन, दे आर वेरी मच, या दे आर कंसिस्टेंट एंड दे आर डिसिप्लिन. देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. दे आर वेरी particular about what they want, females basically. Correct. Yeah, if they set a goal कि मुझे करना है, then they like nail it. Goal oriented. They have passion also. उनको सीखना होता है. So obviously there is lot of scope. Trainers are degraded. Current scenario of fitness industry. Do you think gym owners trainers को degrade कर रहे हैं? ये इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगा? इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा अगर ये सच में अगर हो रहा है तो. Am I clear? क्योंकि ट्रेनर्स अगर आपके जिम में
लंबे समय के लिए काम नहीं करते। Okay. दिक्कत किसको होगी इससे? जिम ओनर्स को ही दिक्कत होने वाली है। Right. ओके, तो उनको हमेशा स्टाफ ढूंढना पड़ेगा, उनको हमेशा ट्रेनर्स के लिए यहाँ वहाँ उनको रिक्वायरमेंट भेजना पड़ेगा, हमेशा आपके पास एक नया एम्प्लॉय आएगा, फिर उसमें आपका ही सरदर्द होता है। यू हैव टू ट्रेन हिम, ओके, उसको सारे सिस्टम्स बताओ, उसके सिस्टम्स में बिठाओ उसको। सो द बेस्ट थिंग वुड बी रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये काम जो है ये जिम ओनर का होता है, ओके, तो जिम ओनर ने इसके तरफ काम करना चाहिए थोड़ा सा। आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे या उसके इनकम में आप कैसे इंक्रीमेंट दोगे, ये जिम ओनर ने देखना चाहिए। अब सर 70% पीटी रेशियो जिम्स को जाता है, ट्रेनर्स गेट ओनली 30%। उस 30% में से भी 5% जीएसटी काटते हैं। इनडायरेक्टली ट्रेनर के हाथ में तो 25% आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आइडियल पीटी रेशियो फॉर ट्रेनर्स एंड हाउ कैन वी चेंज दिस करंट सिस्टम व्हिच इज गोइंग ऑन? See, if I talk about a gym business, okay, since I have also done gym management, I have handled gyms, okay, my belief is that initially the beginning में ही जो ratio होना चाहिए, it should be beginning में 50-50%. Okay. So एक ट्रेनर जब आपके पास आता है, मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ट्रेनर आपके पास आया, आपने उसको एज ए जनरल ट्रेनर रिक्रूट किया, कुछ महीनों तक आपके पॉलिसी के अनुसार 2 महीने 3 महीने 6 महीने वो जनरल ट्रेनर एज अ जनरल ट्रेनर उसने काम किया, उसके बाद आप उसको फिक्स करते हो एज अ पर्सनल ट्रेनर, यू रिक्रूट हिम एज अ पर्सनल ट्रेनर। जब वो एज अ पर्सनल ट्रेनर आता है, द बेस्ट थिंग वुड बी टू स्टार्ट विथ 50-50%। 50% गोज टू द ट्रेनर, 50% गोज टू द जिम। क्लियर? अब वो ट्रेनर आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड आपके पास काम करता है, जैसे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, यू कीप अ पॉलिसी कि जहां पर लोग आपके साथ में है इतने सालों से, दे आर लॉयल टू यू, तो आप बाद में उसका जो इंसेंटिव रेशियो है वो बढ़ाइए, आप मेक इट 60-40, 60 टू द ट्रेनर, 40 टू द जिम। ये आप करिए। वाई? एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में द ट्रेनर बिकम्स वेरी पॉपुलर अमंग्स द क्लाइंट्स, अमंग्स द मेंबर्स। माउथ पब्लिसिटी से भी लोग आपके पास आते हैं। अभी हम जब पर्सनल ट्रेनर्स थे, व्हेन वी वर पर्सनल ट्रेनर्स, वी यूज्ड टू ट्रेन पीपल, द ट्रेनिंग यूज्ड टू बी सो गुड कि वो 4 लोगों को बोलते थे और उसमें से 2-3 लोग आते थे कि वी वांट टू टेक योर ट्रेनिंग, बट वी वांट टू टेक योर ट्रेनिंग मतलब दे आल्सो बिकम अ जिम मेंबर ना। Yeah, right. But they have to take membership of the gym, Then they have to take training. and then they have to pay for the personal training. Right. So this is because of that trainer also. तो ये जिम ओनर्स ने भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आपको आपके पास एम्प्लॉय लंबे समय के लिए चाहिए, ओके, और आपको, मैं तो बोलता हूँ एक जिम के अगर आपको 4 जिम करने हैं, तो एम्प्लॉय रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप दूसरे जिम, दूसरे ब्रांच की तरफ आप ध्यान दोगे। और इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का सिस्टम अगर वो बनाएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। राइट। अभी लाइक रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा, एम्प्लॉय रिटेंशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन फिटनेस इंडस्ट्री। सो हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस? हाउ कैन जिम ओनर इम्प्रूव दिस? एम्प्लॉय रिटेंशन, एक तो पहले मैंने जवाब दे दिया आपको, यू गिव देम प्रॉपर इंसेंटिव, ओके। सेकेंड थिंग इज पे देम ऑन टाइम, उनकी सैलरी आप टाइम पर दीजिए, उनके इंसेंटिव जो उनके डेट होते हैं वहां पर दीजिए, क्योंकि उनके भी EMIs होते हैं, राइट, उनका भी घर चलता है, ये आप ये देखना चाहिए, ओके। उसके साथ में आप ये भी देखोगे कि आप उनको कुछ कुछ एक फैसिलिटीज अगर आप प्रोवाइड करो, जैसे कि अगर आप मेडिक्लेम वगैरह निकाल के दो। नाउ आई एम नॉट सेइंग मेडिक्लेम फॉर ऑल द ट्रेनर्स, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी हम एक सिस्टम बना सकते हैं। आप एक सिस्टम बना सकते हो, जैसे एक ट्रेनर जो आपके जिम में एक पर्टिकुलर पीरियड तक काम कर रहा है, उसने आपके जिम में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंप्लीट किया है, नाउ इट इज कंफर्म दैट ही इज लॉयल टू यू, ही इज हैंडलिंग द एंटायर शो वेरी नाइसली, जिम फ्लोर अच्छे से वो हैंडल कर रहा है, मे बी ही इज अ फ्लोर मैनेजर राइट नाउ, तो उसको आप एक एडिशनल आप उसको फैसिलिटी दीजिए, जैसे उसका मेडिक्लेम निकाल के दीजिए, ओके, तो वो ट्रेनर आपके पास रहेगा, करेक्ट। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इवन सैलरी स्लिप्स, सैलरी स्लिप दीजिए उनको आप ऑफर लेटर दीजिए, ओके, उनको एक्सपीरियंस लेटर दीजिए। और यहाँ पर मैं ट्रेनर्स के लिए भी बात करूंगा, इवन ट्रेनर्स हैव टू सी दिस कि जब वो कोई जिम छोड़ते हैं, जब व्हेन दे आर क्विटिंग द जिम, तो उन्होंने सही तरीके से नोटिस पीरियड देना चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पर ट्रेनर्स को भी बोलूंगा कि आपने भी
जिम ओनर्स का प्रॉब्लम समझना चाहिए आपने भी. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर प्रॉब्लम. आप अचानक आके बोल दोगे कि कल से मैं नहीं आ रहा हूँ. दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. एथिकली ऑल्सो दैट इज नॉट करेक्ट. बराबर है. तो जिम ओनर एक बिजनेस चला रहा है, ओके, और यू सिट इन हिज प्लेस एंड यू रन द बिजनेस. आपको समझ में आएगा कि बिजनेस चलाना कितना डिफिकल्ट होता है. ओके, तो ऑल ऑफ अ सडन आप आके जिम ओनर को बोलोगे कि अभी मैं अगले हफ्ते से नहीं आ रहा हूँ, कल से नहीं आ रहा हूँ. दिस इज नॉट दैट. ओके, तो आप भी जब छोड़ के जाओगे, यू गिव देम अ प्रॉपर नोटिस. आपको जो जो काम दिया गया है वो कंप्लीट करके जाइए. ओके, और अच्छे टर्म्स पर छोड़ के जाइए, ताकि जिम ओनर भी आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे और आप अगले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो वहां पर आप सही तरीके से जाओ विद गुड टर्म्स. क्योंकि अगेन अंडरस्टैंड, ऑल द जिम ओनर्स दे नो ईच अदर. बराबर है. तो वो भी आपस में बात करेंगे. सो व्हाई यू नीड टू लीव ऑन बैड टर्म्स. सो ये मैं ट्रेनर्स के लिए भी बोलूंगा. सो ये दोनों को, जिम ओनर्स और ट्रेनर्स, ये दोनों ने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया, this industry would be very much organized. This is what I think. Means for employee retention, either a PF or a mediclaim, और we can say एक सैलरी स्लिप दे सकते हो, ताकि अगर कोई ट्रेनर EMI के लिए अप्लाई कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसको मिल सकता है. या सैलरी स्लिप आप आराम से दे सकते हो. सैलरी स्लिप आप दे सकते हो, या मेडिक्लेम जैसे मैंने बोला, सबके लिए नहीं, लेकिन जो बहुत सालों से आपके यहाँ पर काम आप कर सकते हो. इस तरीके का आप फैसिलिटी उनको दे सकते हो. मतलब द ट्रेनर विल आल्सो फील दैट यू नो दे आर बीइंग गिवन some amount of value here, or they are getting some amount of respect here. Security है इनको. So this is a very important thing. अब सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके, एक ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरता है, एवरीवन नोज, एंड द नंबर वन थिंग इज फाइनेंशियल क्राइसिस. सो फिटनेस इंडस्ट्री 2026, हाउ टू बिल्ड योर ओन सिक्योरिटी फॉर अ पर्सनल ट्रेनर? Okay, very good question. Okay, because फिटनेस इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमको ये भी समझना है कि हमारे खुद के डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर खुद का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है. बहुत खर्चा. ओके, तो बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स जो है वो, जैसे हमने भी बात की कि दे आर इनटू मसल बिल्डिंग, फिटनेस, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, या वो नहीं भी कर रहे, उनको अपने बॉडी को खुद अच्छे शेप में रखना है, तो वहाँ पर खर्च है. ओके, देयर इज एक्सपेंस ऑफ न्यूट्रिशन, या उनको वर्कआउट करना है, या कुछ एक्सेसरीज उनको लेने हैं, अगर पावर लिफ्टिंग में वो है, बॉडी बिल्डिंग में अगर वो है. ओके, उसके अलावा उनको घर भी चलाना है. करेक्ट. द बेस्ट थिंग, समथिंग दैट इवन आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर years and years, और मैं ये रिकमेंड करूंगा सारे ट्रेनर्स को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर दैट यू अर्न, उसमें से एटलीस्ट 20% यू शुड सेव. आपने सेव करना चाहिए, और यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट, ऑब्वियसली विद प्रॉपर रिकमेंडेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. मतलब इन्वेस्ट कहाँ करना है उसके लिए भी बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं. आप उनके पास जा सकते हो, आप अलग अलग स्कीम्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, जो आपको बेसिकली कुछ सालों के बाद उसके रिटर्न्स मिलेंगे. ओके, और अच्छा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये खुद मैं भी फॉलो करता हूँ. सो बिकॉज आई टोल्ड यू, I started my journey as I'm from a middle class. तो मैं कोई रिच क्लास से वगैरह नहीं हूँ. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, ये कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की और जिसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है अभी भी. और मैं सेम चीज़ सारे ट्रेनर्स को बोलूँगा दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी. ओके, देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग अ iPhone, आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग ब्रांडेड स्टफ. वो खरीदिए, बट पहले इनिशियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम स्टेबल. और आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना, कुछ अमाउंट अपग्रेडेशन के लिए रखना, जैसे हमने पहले भी बात की. ओके, और उसमें से जो अमाउंट बचता है उसमें से यू नो अपनी चीज़ों को खरीदना, या जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो. अच्छा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ऐसा भी एक टाइम आता है वेयर दे आर वेरी मच स्टेबल, देयर इनकम इज वेरी गुड. ओके, बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स ऐसे हैं, दे आर एक्चुअली अर्निंग इन 6 figures नाउ. ओके, बहुत अच्छी इनकम है उनकी. ओके, तो ये धीरे धीरे होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो रहेगी, इनफैक्ट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ेगा. करेक्ट. देयर आर सो मेनी स्कीम्स. आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाओगे तो आपको
ठीक से वो उसको आपको समझाएगा. Right. So I think this should be done by all those who are working in the fitness industry. Okay. And This is my personal opinion. now talking about the most important topic, or you can say a most controversial topic which is going on in the fitness industry, fake certifications. जैसे fake supplements हो रहे हैं, जैसे fake steroids हो रहे हैं, जैसे fake बहुत सारी चीज़ें, वैसे सर्टिफिकेशंस में भी स्कैम हुए जा रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में. सो सर अब एक नया ट्रेंड शुरू है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सर्टिफिकेशन कोर्स. 15,000 से 20,000 इसका कॉस्ट है, और जब ट्रेनर्स ये सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, सो खुद को एक स्टेरॉइड गुरु मान के बच्चों को कंसल्ट किए जा रहे हैं. सो इस पे आपके क्या व्यूज है? देखिए, when it comes to steroids, we need to accept this. If we talk about bodybuilding, if we talk about powerlifting, यहाँ पे हम लोग ऐसे strength sports की हम लोग बात करते हैं, it is very open that these things are used there. ये कोई छुपी हुई चीज नहीं. If you want to do all these things professionally, अगर आपको उसी में आगे बढ़ना है, तो हमको पता है कि वहाँ पर ऑब्वियसली एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट एक थोड़ा बूस्ट देने के लिए ये चीजें, ओके, जो अर्गोजेनिक्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, फार्मास्यूटिकल एड का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, ऐसे लोगों के लिए इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड द नॉलेज हैज टू बी फ्रॉम द राइट पर्सन. करेक्ट. अच्छा, जो नॉलेज दिया जाता है दैट ऑल्सो शुड बी रिसर्च बेस्ड. करेक्ट. क्योंकि ये सारी चीज़ों का भी उसका भी एक पर्टिकुलर साइंस है, या उसको कैसे यूज़ किया जाता है, या जो भी चीज़ें इसमें, जैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये उनको बताना, स्टूडेंट्स को बताना, क्या यूज़ करने के बाद क्या हो सकता है आपके बॉडी में, क्या चेंजेस आ सकते हैं, या उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, या साइड इफ़ेक्ट रोकने के लिए आपको क्या करना है. अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से आप सीखते हो और आपने सोच लिया है कि आपको आगे चल के इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, ओके, यू वांट टू डू बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली, और पावर लिफ्टिंग प्रोफेशनली, और मे बी सम अदर स्पोर्ट ऑल्सो, ओके, तो यहाँ पर विद द राइट नॉलेज, ओके, आई वुड से दैट स्टिल इट इज एक्सेप्टेड. एम आई क्लियर? बट यू डोंट हैव द नॉलेज, और यू हैव हाफ नॉलेज, और लेट्स से यू हैव टेकन वन पर्टिकुलर नॉलेज और आप सबको देते बैठ रहे हो, ओके, तो ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. एम आई क्लियर? सो there are many people who do these kind of courses for their own knowledge. अपने खुद के नॉलेज के लिए भी करते हैं, but they don't use it. ऐसा भी होता है, उनको खाली जानना होता है, but they are not going to use it, या वो किसी को रिकमेंड नहीं करते. लेकिन there are so many athletes, there are so many bodybuilders who do this particular type of course or workshop, और वो यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से यूज किया है. ऐसा नहीं कि उन्होंने यूज नहीं किया है. करेक्ट. बट नाउ दे वांट टू डू इट द राइट वे. ओके, तो वहां पर आपको सोचना चाहिए, आपने देखना चाहिए, और आपने सोच समझ के ये चीजें करना चाहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है. राइट. ओके, जैसे मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा, जैसे टर्मिन के बारे में आपने सुना है, आगे क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है. ओके, और ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है बाहर. तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स को या फिटनेस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को पता होना चाहिए दैट दिस इज वेरी डेंजरस, स्टे अवे फ्रॉम दिस. तो एवरीथिंग हैज गॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ना. एजुकेशन ऑल्सो, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे, इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि टर्मिन है और उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं. एंड टर्मिन इज इजीली अवेलेबल आउटसाइड. ये इजीली बाहर अवेलेबल है, ओवर काउंटर मिल जाता है. हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसके इन्फ्लुएंस में बहुत सारे गलत चीजें की है. करेक्ट. अगेन, ये यूज नहीं करना है, ये भी आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू एजुकेशन. या ओके, सो एजुकेटिंग फ्रॉम दिस कोर्सेज इज गुड, बट किसी को रेकमेंड करना आगे जाके इट्स नॉट. हाँ, रिकमेंड करना और बाद में उसके आधा एजुकेशन लेना, ओके, आधी जानकारी नहीं लेना, ओके, या आपने कभी कोई चीजें की नहीं है और आप दूसरे को रिकमेंड कर रहे हो. मैं आई वुड बी वेरी ओपन हियर. बॉडी बिल्डिंग, अगर एक लड़के ने बॉडी बिल्डिंग की है, ओके, तो बॉडी बिल्डर्स जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, दे आर इनटू बॉडी बिल्डिंग. उनको पता है कि न्यूट्रिशन का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ डाइट फॉर मेनी इयर्स. एंड दे ऑल्सो नो कि फार्मास्यूटिकल एड या अर्गोजेनिक एड का बॉडी पर क्या असर होता है और वो कितना लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर वो ट्राई किया है. ओके, और उसको नॉलेज है और वो किसी को बता रहा है. ओके, और एक दूसरा आदमी है जिसने जिंदगी में कभी बॉडी बिल्डिंग की नहीं,
जिंदगी में कोई स्पोर्ट में नहीं था, जिंदगी में कभी बॉडी बिल्डिंग की नहीं है, नहीं। पावर लिफ्टिंग की नहीं है, Right. वो वर्कआउट भी रेगुलरली नहीं कर रहा है। Right. मतलब मैंने देखे हैं ऐसे लोग, हाँ, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ हाँ, कि जो रेगुलरली वर्कआउट भी नहीं करते, हाँ, उनके बॉडी के ऊपर, उनके फिजिक में आपको कुछ नहीं दिख रहा है और वो दूसरों को रिकमेंड, रेकमेंड करते हैं दोनों में फर्क है ना। बहुत सो एजुकेशन आप उसको कैसे लेते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इम्पोर्टेंट इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो इफ यू टेक इट पॉजिटिवली. अदरवाइज अगर गलत इस्तेमाल किया, इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. अब many institutes just for the sake of money, now this is a crucial point we are talking about, many institutes just for the sake of money fake reps and SPFL SEK government credentials and accreditations दे रहे हैं and students confused है कि they don't understand कि इसमें सच क्या है झूठ क्या है and they are like falling in a trap of all this. Now this is one of the most crucial point, many institutes just for the sake of money fake e-reps and SPFL SEK government accreditations and credentials दे रहे हैं. So upcoming trainers are falling a trap to all these fake certifications. So how can they spot the difference between someone which is genuine and someone which is fake before investing their hard-earned money? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन समबडी इज एंटरिंग द फिटनेस इंडस्ट्री. अगर एक स्टूडेंट है जिसको फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर डेवलप करना है और अगर वो एक फिटनेस एकेडमी के बारे में जानकारी लेता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने कुछ चीजों के बारे में इंक्वायरी करना, Right. और उसके प्रूफ देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हाँ. ओके, आप उस एकेडमी के वेबसाइट के ऊपर जाते हो या आप उस पर्टिकुलर एकेडमी में जाके इंक्वायरी करते हो और आपको बताया जाता है, वेबसाइट पे भी लिखा जाता है कि they are recognized by SPFL, they are recognized by some international certification, like for example European reps. Right. It is the job of that particular student to ask for proof. Okay, like for example, let's talk about IFSI. Okay, I will show you two things here. This is the certificate that we have received from SPFLSC. Okay, which is basically from NSDC Skill India. Okay. Correct? Now there are certain things. Now if you read this particular thing, okay, this is by the central government. Correct? And उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. We are pleased to inform you that your due diligence process has been conducted and found to be satisfactory with Sports Physical Education Fitness and Leisure Skill Council. This due diligence is valid for 2 years from the date of this letter. तो अगर आपने यहाँ पर देखा, they have a date. यहाँ पर डेट अगर आप मेंशन देखते हो 6/3/2026, यहाँ से लेके 2 साल तक. ओके, वी आर ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर्स विद SPFL. अब हमारा नाम, अगर आप SPFL के पोर्टल पर जाते हो तो हमारा नाम, मतलब एकेडमी का नाम इंटीग्रेटेड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होगा. ये एक छोटा सा चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, दिस इज अ प्रूफ. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन. E-reps. हाँ, अब यहाँ पर देखिए. ओके, दिस इज द यूरोपियन रेप्स. ओके, यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूरोप एक्टिव. Correct? Certificate of accreditation. Correct? I told you about European qualification framework. Level 4%. Level 4. See this. Yeah. Correct? Now, if you see, it is valid up to what date? See this. 31st May 2027. 31st May 2027. Yes. तो इनके पोर्टल के ऊपर भी अगर आप जाते हो, you will see that there is a name of IFSI, Integrated Fitness and Sports Institute. वहां पर आपको दिखेगा. Now these are certain things which should be reflected on the website, एकेडमी के वेबसाइट के ऊपर, या अगर आप उस एकेडमी में जाके इंक्वायरी करते हो तो ये चेक करिए. अभी हमारे यहाँ जब इंक्वायरीज आते हैं, हमने ये रखा हुआ है यहाँ पर. When you are paying in that particular academy, hard earned money आप वहां पर दे रहे हो, और आपको बाद में पता चलेगा कि उस सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो गलत इंफॉर्मेशन थी. ओके, तो आप क्या करोगे? दैट सर्टिफिकेट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन द फिटनेस इंडस्ट्री. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और सर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऐसे बताता है. फॉर एग्जांपल कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसके नीचे E-refs का लोगो होता है, SPFL का लोगो होता है,
but I've heard that they cannot put these logos on their certificates. So एब्सोल्युटली ट्रू. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी दिस, ये SPFL का सर्टिफिकेट है. understood. ओके, Oh, हाँ. जो हमको मिला है, दैट वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर. हाँ. यहाँ पर क्या लिखा है देखिए आप. Okay. I'll just show to the Please. audience. So guys, अगर आप कोई अकेडमी के साथ अकेडमी का सर्टिफिकेशन देखते हो और उनके सर्टिफिकेशन पे अगर SPFL का लोगो है, then it's wrong. Then that's not a genuine academy. क्योंकि SPFL ने clearly state किया है कि please do not use the logos of the Ministry for Skill Development and Entrepreneurship and NSDC without written permission. सो रिटर्न परमिशन के बगैर आप कोई भी अकेडमी अपने सर्टिफिकेशंस पे ये लोगो नहीं लगा सकती. ओके, सो इफ समवन इज स्कैमिंग यू, बी अवेयर. अभी हमारे पास जो SPFL के सर्टिफिकेशन करते हैं, हाँ. they get a certificate from IFSI which has got logo of IFSI, and they get another certificate from SPFL SC. हाँ. तो ये दूसरा सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर उनके लोगो होते हैं. राइट. और अगर उसी स्टूडेंट ने अगर यूरोपियन रेप्स किया है, he gets a separate certificate of European reps. So he will actually get 3 certificates. अंडरस्टूड. So this is the diploma in personal training जो आपने एक सवाल किया था, उसमें ये 3 सर्टिफिकेट उसको मिलेंगे. अंडरस्टूड. सो ये चीजें जो स्टूडेंट्स जो फ्रेश अभी फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ये चीजों के बारे में उन्होंने ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now talking about placements, or I can say fake commitments during placements, कि हम 100% job guarantee देंगे. So can you educate upcoming trainers between job guarantee and job assistance? Yeah. Now when you talk about guarantee का मतलब है कि आप उनको जॉब दोगे ही, इसका मतलब होता है गारंटी. ओके. Now when we talk about assistance means we are going to help you in getting the job. This is a big difference, correct? So obviously now let me talk about IFSI, about our academy. Our academy started in the year 2015 till today. Okay, we have been successfully assisting our students. हमारे students को हम successfully help कर रहे, assist कर रहे in getting jobs. क्योंकि चाहे हमारी academy मुंबई में हो या पूना में हो या अभी थाना में हमारी एकेडमी रिसेंटली खुली है, या दूसरे इवन जैसे सेमी ऑनलाइन कोर्सेज में गोवा के स्टूडेंट्स आते हैं, साउथ के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमारे पास वहाँ के जितने भी जिम ओनर्स है उनकी रिक्वायरमेंट आती है. राइट. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. यहाँ हमारे पास इवन बड़े बड़े ब्रांच जैसे हेल्थ कार्ड, तो हेल्थ कार्ड भी हमारे पास रिक्रूटमेंट करती है फॉर देयर फैसिलिटी मैनेजर. उनके जो शॉप में मैनेजर्स होते हैं या वहाँ पर शॉप में लगने वाले जो असिस्टेंट होते हैं, उनके लिए भी हमारे पास वो अप्रोच करते हैं. ओके. उसके बाद हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स आज क्रूज शिप्स के ऊपर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं. सो दे ऑल्सो अप्रोच अस फॉर रिक्रूटमेंट. ओके. देयर आर मेनी बिग ब्रांड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जिम्स, फिटनेस स्टूडियोज, दे आर हायरिंग आवर ट्रेनर्स. वी आर असिस्टिंग, वी आर हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स in getting employment. Yeah. Okay. So उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है हमारे पास. In fact, there is a department जो हर स्टूडेंट को कॉल करके उनको पूछती है, do you have a job or do you don't have a job? You don't have a job right now. You have a job. जो भी आपकी कंडीशन है. स्टूडेंट ने बोला मेरे पास जॉब नहीं है. The person is going to assist. The HR person is going to assist him. So that is assistance, helping. Yeah. Okay. So that is the difference between guarantee and assistance. Okay. So भले हम असिस्ट करें, लेकिन we make sure कि वो स्टूडेंट को जॉब मिले कहीं ना कहीं. He gets a proper job. उसका एक फिटनेस इंडस्ट्री में बेटर स्टार्ट हो. ओके. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास वापस आते हैं. दैट इज देयर अ बेटर प्लेसमेंट, अगर कहीं पर है तो उनको अगर वैसा भी है कुछ वेयर देयर इज अ बेटर प्लेसमेंट, तो वहां पर भी मैं उनको बताता हूँ कि आप यहाँ पर भी जा सकते हैं. बिकॉज अगेन एवरीबडी रिक्वायर्स ग्रोथ, सो वी असिस्ट देम, हेल्प देम. सो दिस इज अ बिग डिफरेंस. या सो मोस्टली जो कमिट कर रहे हैं कि हम 100% जॉब गारंटी देंगे, सो इट्स बेसिकली दे आर जस्ट taking the student and dumping him to some XYZ gym, or it's like that. They are dumping them to some gyms, or maybe
व्हाट इफ आपने उनको बोला है, गारंटी दी है, हाँ बट आपने अगर नहीं प्रोवाइड किया जॉब, हाँ या तो देन योर नेम इज एट स्टेक, नो? या राइट अगेन या राइट ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा. हाँ राइट Okay, so obviously now by God's grace there is one thing कि fitness industry में अभी इतना employment है कि आपको मिल जाता आपको मिल जाता है. हाँ Okay, but there is a difference between giving a guarantee and assisting. assisting yeah right So this is a big difference. Now, summarizing the interview with that very question, if a normal personal trainer like me wants to be as successful as Nikhil Ashtavale, what's the step-by-step blueprint to the top? Step-by-step blueprint. I would like to answer this in certain points. The first very important point is passion, having a passion in this particular industry. Second thing is upgradation, learning more and more things. Third thing is practical application. Practically applying. नहीं तो तुम अप्लाई नहीं करोगे तो तुम दूसरों को क्या बताओगे और क्या रिजल्ट्स होंगे. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, करेक्ट. फोर्थ थिंग इज ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज. जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर जाइए. Now let me tell you here also, when I talk about opportunity, it is not only opportunity in training, but it is also opportunity in sales. Sales, हाँ. क्या आपको सेल्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो वहां पर भी आप जाओगे तो आप सीखोगे. right. कल अगर आपने जिम खोली तो वो काम आएगा आपको. काम आएगा. So it is getting opportunity, okay? And the last thing is target oriented. You should have a target, correct? Along with target, there is one more thing I would like to mention. Be perfect in what you're doing. So being perfect is very, very important. कि आप जो भी करो उसमें परफेक्शन होना चाहिए. आप चाहे एक पर्सनल ट्रेनर हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, ओके, और यू आर अ फैकल्टी ऑल्सो, परफेक्शन हैज टू बी देयर. Okay. सो ये चीजें मैं बोलूंगा कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. So you have to be a complete whole. Like आपको एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए सीखने का. अगर आप बोलोगे कि मेरे को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, मुझे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही सीखना है, ये मैं बाकी सब कुछ इग्नोर करूंगा, तो मेक्स नो सेंस. आपको एक मल्टीपल चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी टू बी द बेस्ट. या अभी अगर वो स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा. समबडी वांट्स टू बी अ बॉडी बिल्डर ओनली और उसका टारगेट है to go up to the biggest level in bodybuilding. Let's talk about Mr. Universe and Olympia. Then obviously then he has to learn everything about bodybuilding. Yeah. But also to sell himself. Obviously, yes. हाँ. फिर उसमें मार्केटिंग भी आ जाता है. उसमें अगर वही बॉडी बिल्डर कल अपना बिजनेस सेटअप करता है, ओके, तो बिजनेस में लगने वाली चीजें, उसमें मार्केटिंग है, सेल्स है, सिस्टम बिठाना है, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना. सो ये ऐसा ओवरऑल अप्रोच है. बहुत सारे एस्पायरिंग ट्रेनर्स ये वीडियो देखते रहेंगे. सो गाइस, मैं सर के अकेडमी इंटीग्रेटेड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट IFSI का एक गूगल फॉर्म यहाँ लगा दूंगा. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द अकेडमी, आप फॉर्म फिल कर लेना एंड आपके डिटेल्स डायरेक्टली सर के टीम के पास जाएंगे एंड यू कैन कनेक्ट विद देम. तो गाइस, द पॉडकास्ट कम्स टू एन एंड. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. लाइक सर से कनेक्ट करना एंड इतना अकेडमी संभाल के हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालना, इट्स अ बिग थिंग. थैंक यू सो मच एंड इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू इन आवर एकेडमी. एंड आई होप कि मेरा ये जो पॉडकास्ट है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इससे फिटनेस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट जो काम कर रहे हैं उनको मदद मिलेगी. एंड इवन दोज हु वांट टू एंटर द फिटनेस इंडस्ट्री, तो उनको भी इससे मदद मिलेगी. सो थैंक यू सो मच. फिटनेस इंडस्ट्री इज अ वंडरफुल प्लेस गाइस. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब.